ہاللویا ہاللویا۔ مسیح یسوع کے جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی بات تھینک یو جیسس۔ آئیے دعا کریں۔ اس خوبصورت پرستش کے لیے یسوع کے نام کو ہم جلال دیتے ہیں، ہم ناچیں، ہم گائیں، ہم اس کی حمد افزائی کے گیت گائیں، بجا کر گا کر اپنی آواز سے۔ بہت اچھا لگتا ہے پرستش کے ذریعے سے خدا کی حضوری کا تخت لگتا ہے، اور پھر تخت میں سے آوازیں گرجیں پیدا ہوتی ہیں، پھر خدا کلام کرتا ہے۔ آئیے شکر گزاری کریں۔ پیارے آسمانی باپ، ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے، جتنی بار بھی تیرا شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ خداوند تیری گناگو رحمتوں کے لیے، تیری محبت کے لیے، تیرے پیار کے لیے، تیری ساری سچی الفت کے لیے جو خداوند تو نے ہم سے کی ہے۔ سچ مچ ہے خدا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، خدا تو نے اپنا بیٹا دینے سے دریغ نہ کیا، اور خداوند جب تو نے اپنا بیٹا دینے سے دریغ نہ کیا تو باقی نعمتیں برکتیں خداوند وہ سب کچھ تو ہمیں کیوں نہ دے گا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں ساری پرستش کے لیے، جتنے لوگوں نے گایا ہے، گیتوں زبوروں کے وسیلہ سے تیری مدح سرائی کی ہے، انہیں برکت دے، برکت دے، اور خدا روح سچائی سے گانے کا، پاکیزگی سے گانے کا، یسوع کے نام سے خدا کلام کے مطابق گانے کا بڑا بھاری فضل بخش دے۔ ہاں خداوند، جب تک تو فضل نہ دے نہ ہی ہم گا سکتے ہیں نہ بجا سکتے ہیں۔ یہ سانسیں، یہ آواز، یہ زبان، یہ سب کچھ تیری طرف سے ہے، ایک ایک سانس تیری بدولت ہے خدا۔ خداوند تیرے کلام کے بغیر نہ تو پتہ ہی زمین پر گر سکتا ہے۔ خداوند تو ہی ہواؤں، پانیوں اور ساری قدرت کا سرچشمہ ہے، سمندروں کو بنانے والے خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں خدا۔ تو نے اپنے کلام کو زیادہ عظمت تو نے اپنے کلام کو دیا، ہم بھی تیرے کلام کی عزت کرتے ہیں خداوند۔ بائبل اسٹڈی کی شکل میں جو کچھ بھی تیرا بندہ تیرے لوگوں تک تیرے کلام کی سندر باتیں، سچی باتیں بیان کرتا ہے، ہمیں محض سننے والے نہیں بلکہ اس کو قبول کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے خدا بنا، ہم سنیں اور برکت پائیں۔ نیٹ ورک کو سارے تیرے زخمی ہاتھوں میں دیتے ہیں، جہاں جہاں سے بھی جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں اس سب کو بڑی برکت دے خدا۔ یسوع مسیح کے عظیم جلالی قادر اور فتح مند نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ شفایت کرنے والے اور خدا ان کی حضوری میں رات کے مفتی پیروں میں ہم کو فضل بخشی کے کلیسیوں کے لیے خاتموں کے لیے دعا مانگی۔ اب وقت ہے کہ ہم بات کی طرف کام کرو گے۔ میں خدا کے قادر ڈاکٹر جان جوڑوں کو گزارش کروں گا کہ اپنے مائک کو انمیوٹ کریں اور آج بائبل اسٹڈی کی کتاب میں سے خدا نے آپ کو دیے ہیں تاکہ ہم اسے سنیں، سمجھیں اور اپنی زندگی کے استعمال کریں۔ ڈاکٹر جان آمین آمین آمین۔ خداوند آسمانی باپ، ہم شکر گزار ہیں آج ہم 12 قبیلوں میں سے بہت زیادہ عدد میں موجود ہیں خداوند، جب کہ آپ نے ان 12 قبیلوں کی آواز کو سنا اور خداوند نے آپ نے یرو کی دیوار گرا دی، تو خداوند ہم تو ان سے کہیں زیادہ ہیں۔ ہماری دلی دعا ہے کہ ہم سب کی کمزوریاں، ہم سب کے دکھ، ہم سب کے تکلیف اور ہم سب کے غموں کو خداوند تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اپنے بندہ کو خداوند طاقت اور ہمت دے کہ سچائی کے ساتھ تیری رحمت کو
तेरे बंदों में फैलाने के काबिल बन जाए। यीशु नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। भाइयों, चंद सवाल तो हम करते ही हैं स्टडी के मुताबिक, तो मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं बहुत जानता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि हम सब अगर जानता है तो उसकी रिवीजन हो जाती है, और जो नहीं जानते उन भाइयों के लिए एक गज़ा बन जाती है। तो रिवीजन कर लेना जो हम जानते हैं उनके लिए बुरा नहीं है, और जो नहीं जानते, ये हर आदमी अपने आप को बेहतर जानता है, और ये हम अपने ही से सवाल कर सकते हैं और अपने ही लिए खुदावंद से जवाब ले सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि आपने गिनती की किताब उसका 13वां बाब ज़रूर पढ़ा होगा घर में, और नेक्स्ट वीक हम गिनती की किताब उसका 14वां बाब देखेंगे। गिनती की किताब 13वें बाब से पहले पढ़ने से पहले, कलाम मुकद्दस के आने से पहले हम कुछ रिवीजन करेंगे। जब मुल्क मिस्र से ये सारे इसराइल कौम जो दुखी थे वो निकाले गए, तो कहाँ जाकर ठहरे? 1 साल पूरा सफर किया उन्होंने, तो वो कहाँ ठहरे? जो खरूज की किताब में आप जानते हैं कि लिखा है, और खरूज की किताब ही बताती है कि वो मिस्र से निकले थे, और अब ठहरे कहाँ जाके? गिनती की किताब में हमने देखा है कि जी, जब मुल्क मिस्र से निकले थे वो समुद्र पार करके वो बियाबान में गए। वेरी गुड। और फिर ठहरे कहाँ थे? जब मोसेस ऊपर गए थे खुदावंद से, आमीन, ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि खरूज हमें क्या बताती है? खरूज की किताब जो है मुकद्दस किताब, वो हमें क्या बताती है? खरूज की मुकद्दस किताब हमें कानून के बारे में बताती है, और उनके 1 साल का सफर जो है मिस्र से लेकर कोहे सीना तक। और कोहे सीना क्या जगह है? कोहे सीना जबल अल मूसा है, और जबल अल मूसा कहाँ है? मेरा ख्याल भाई अलवर को जरूर पता होगा। जी, जॉर्डन में है सर, मैंने विजिट किया उधर। अच्छा, और कौन बताएगा? वो सऊदी अरब में है। जबल अल मूसा जो है वो सऊदी अरब के बॉर्डर पे है, और उस बॉर्डर पर आज भी वो जो पहाड़ है वो नजर आता है कि वो काफी जला हुआ है, और मट्टी उसकी काली है, और वहां पे तकरीबन 4-5 साल हुए हैं कि उन्होंने वो बॉर्डर खोला है। इससे पहले सऊदी वहां जाने ना देते थे, लेकिन अमेरिकन वहां गए और उसकी सारी तफ्तीश करके लेकर आए। और अभी हाल ही में चंद ऐसे मुसलमान लोग भी लंदन से गए हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि यार वो मैंने जगह देखी है, और बड़ा अच्छा लगा, वहाँ पे हजूरी है खुदा की, और इस तरह की बातें उन्होंने बताई। तो ये विल्डरनेस की जगह है, और ये वो दहशत की जगह है जहाँ पे कुछ ना उगता था और कुछ ना था। वो सऊदी अरब था, और वो किसके अंडर था? वो सारा का सारा जो है वो केनानियों के अंडर था। कुछ जो है वो मिस्रियों के अंडर था, और कुछ जो है हूर से ऊपर ऊपर का इलाका जो है वो सारा फलस्तीनियों के अंडर था। और फलस्तीनी कहाँ से निकले हैं? फिर से कहूंगा कि बहुत पढ़िएगा पैदाइश की किताब उसका 10वां बाब,
पैदाइश की किताब उसका 11वां बाब, ये जरूर पढ़ते रहिएगा। जब भी कभी ऐसे ही हमें कोई नाम नजर आए तो जरूर फौरन ही उन नामों को देखने के लिए उन खानदानों और कबीलों पर जाएं जिनके नाम पैदाइश की किताब और 10वें बाब में लिखे गए हैं। ये बहुत अच्छा एक तरीका है कि हम बाइबल की हर अल्फाज को जो ऑलमोस्ट इब्राहिम से लेकर मूसा तक आए हैं, वो दोबारा दोबारा हमें रिपीट करते हैं। कहाँ पे? उन खानदानों के बारे में रिपीट करते हैं, बताते हैं जहां से कबीले निकले हैं। यानी वो वाले कबीले नहीं जो 12 कबीले हैं, वो वाले कबीले जिनके नामों पर वो जगह बनाई गई है। जिस तरह के मैं बयान करता चलूं, केनान जो है वो हाम का बेटा था, सबसे बड़ा बेटा। कोशी लोग जो हैं, ये तुर्क के लोग हैं, ये इलाका वहां का है। इसी तरह आपने देखा कि हमने पिछले हफ्ते वो बाब जो 12 पढ़ा था, उसमें कोशी औरत के साथ मूसा ने शादी की थी। और वो कोशी औरत कौन है? जो कोश के इलाके में रहती थी। ठीक है। और फिर ये भी बताता चलूं, अब उन हाम के कबीलों का जो चाल चलन है वो खुदा से बहुत दूर हटकर है, वो बाप से बहुत दूर हटकर है। और पैदाइश की किताब में सेम का जो कबीला है 10वें बाब में, वो सिमेरिटन कहलाते हैं। और सिमेरिटन का आपने देखा है कि वो कानून के लिहाज से खुदा के साथ चलते हैं। उसके बाद अबर आता है, सेम का पहला बेटा अबर। और उसके बाद वहां से कबीले इब्रानियों शुरू होते हैं और वो भी कानून के लिहाज से खुदावंद के साथ चलते हैं। अब आई बात यहाँ पे गिनती की। अब हम देखते हैं कि जिस तरह खरूज की किताब में पहले साल से लेकर एक दिन से लेकर अब इसराइलियों का जो कैलेंडर शुरू होता है वो वहीं से शुरू होता है जब मिस्री वहां से निकले थे। तो बहरहाल मैं ज्यादा इसके बारे में तो नहीं जानता कि मैं ज्यादा तफसील से आपको बताता चलूं, लेकिन चूंकि हमारा जो ताल्लुक है वो यस्सु अल मसीह से है तो हम ईसवी मनाते हैं। हम ना तो हिजरी कहलाते हैं ना इसराइल के कैलेंडर पर, लेकिन इसराइल का कैलेंडर भी जो है वो इन बातों की गवाही देता है कि ये वाकया जो तौरा में लिखे हुए हैं ये हकीकत में है और हमारी किताब मुकद्दस में भी हैं। अगर तस्दीक करनी हो तो जरूर कीजिएगा। जो कि गिनती की किताब और उसके 9वें बाब में भी आप देखें कि बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकलने के दूसरे बरस के पहले महीने में खुदावंद ने दश्ते सीना में मूसा से कहा कि वो बनी इसराइल ईद फसा उसके मोइन वक्त पर मनाए। ठीक है, तो इससे हम साबित कर लेते हैं कि उनको साल गुजर गया था कि जब वो जबल अल मूसा की पहाड़ी पर वहां गए, जिसके आज भी नाम कोहे सीना का नाम जबल अल मूसा है। और मैं इसी तरह जिससे मैंने स्टडी की है उसमें ग्राफ बने हुए हैं, वो मैं आप फेसबुक पर देखेंगे, वो मैं डालता जाऊंगा किसी वक्त में। खैर एनीहाउ, अब जैसा कि हमने देखा कि खरूज की किताब में सब कवानीन मिले और उनको अदायगी में बताया गया और अदायगी के बाद वो वहां तक पहुंचे। और अब गिनती की किताब में यहाँ से जबल अल मूसा से शुरू होते हैं तो खुदावंद ने उन्हें कुर्बानियों के बारे में बताया कि तुम्हें कुर्बानियां किस किस्म की करनी है और कैसी होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, कितनी उम्र की होनी चाहिए। आग की कुर्बानी क्या है, वो सोख्तनी कुर्बानी, मुआफी की कुर्बानी क्या है और गुनाह की कुर्बानी क्या है। तो इस तरह कुर्बानियां जो हैं वो बताई गई। अब जब ये सारा सिलसिला खत्म होता है
ठीक है। तो 13वें बाब में अब शुरू होता है सफर, और जब सफर शुरू होता है तो इसमें एक बात बहुत जरूरी मैं समझता हूं ध्यान करना, कि जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद किसी का वफादार नहीं, ठीक है, लिखा है ना जी, लिखा है ना, क्या मैं सच कह रहा हूं? हाँ, मेरा जिससे साबित होता है कि आप बोलते नहीं हो तो फिर मैं सच नहीं कह रहा। खुदा वफादार है सर, नाम वफादार। हाँ जी, वफादार है, बिल्कुल। और किसका है ये भी देखना है, वफादार किसका नहीं है, और वफादार वफादारी के साथ चलते हैं उनसे। आमीन, आमीन, आमीन। इस बाप में स्पेशली उनके बारे में, खुदा वफादार किनका है? कमजोरों का, गमजदाओं का, तकलीफ याफ्तों का, दुखी दिलों का, ताकि हर एक कमजोर इंसान जो दुनियावी नजर से हकीर और जलील किया जाता है, खुदावंद उसे सरफराज करता है, चाहे दुनिया में हो चाहे आसमान पर। तो ये वफादारी की बात अपनाने के लिए, जानने के लिए खुदावंद ने जो इख्तियार दिया, आज हम वो देखेंगे। जब तमाम चीजें मुहैया कर देने के बाद अब सिलसिला क्या शुरू होता है? इंसान का रद्द अमल। और बताता चलूं कि ये लोग खुदावंद की हजूरी से भी पहले वो किस तरह के थे, लेकिन खुदावंद जो अपनी कौम को उस मकाम पर लेकर जाना चाहता है, उन्हें चाहता है कि ये तमाम चीजें जो खुदावंद की गैर हजूरी में उन लोगों ने अदा की हैं, तुम्हें भी वैसे ही अदा करनी जरूरी है। तो ये आज का बेसिक जो है वो हमारा सबक है। अब आते हैं, मैं पढ़े देता हूं 1 से लेकर और 16 आयत तक मैं पढ़े देता हूं, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 17 से 25 तक पढ़ें, और फिर 25 के बाद 26 से 33 तक पढ़ें। तो फिर हम इस तरह खुदावंद के कलाम को समझने की कोशिश करेंगे और खुदावंद हमें आज समझाएगा। देखें, तैयारी बहुत जरूरी है, और तैयारी करना ये खुदावंद ही अक्ल देता है। 13 बाब में पहली आयत में यूं लिखा है कि और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तुम आदमियों को भेजकर कि वो मुल्क केनान को जो मैं बनी इसराइल को देता हूं हाल दरियाफ्त करें। उनके बाप दादा के हर कबीले से एक आदमी भेजना जो उनके हां का रईस हो। चुनाचा मूसा ने खुदावंद के इशारे के मुआफिक दश्ते फारान से ऐसे आदमी रवाना किए जो बनी इसराइल के सरदार थे। ठीक है, हम देख चुके हैं कि 12 कबीले थे और 12 कबीलों के सरदार भी थे। अब जो सरदार भेजे गए हैं वो देखने हैं, उनके नाम ये हैं। पहला बेटा रोबनी था। आप जानते हैं इसराइल का पहला बेटा, याकूब का पहला बेटा रोबन था। रोबन के कबीले से जकूर का बेटा समूआ। रोबन के कबीले में से जकूर का बेटा समूआ। शमाउन दूसरा, शमाउन के कबीले से हुरी का बेटा सफात। तीसरा, यहूदा के कबीले से यफा का बेटा कालिब। चौथा, आशकार के कबीले से यूसुफ का बेटा अजाल। पांचवा, इफ्राहिम के कबीले से नून का बेटा होसिया। छठा,
बिन्यामीन के कबीले से रफू का बेटा फलती, और जबलून के कबीले में से 7वां, जबलून के कबीले में से सूदी का बेटा जदीएल, और 8वां यूसुफ के कबीले में से यानी मनसी के कबीले में से सूसी का बेटा जदी, और दान के कबीले में से 9वां, दान के कबीले में से जमीली का बेटा अमीएल, और 10वां आशिर के कबीले से मकायल का बेटा सतूर, और फिर 11वां नफ्ताली के कबीले से दफसी का बेटा नखजी, और 12वां जद के कबीले से माकी का बेटा जोएल। ठीक है, तो चौथा कबीला तो यहूदा था, तीसरा कबीला तो लावी था, वो किधर गए? ठीक है, उनको खुदा ने मूसा से कहा था कि तू लावी और हारून के कबीलों को, हारून का और लावी का कबीला एक ही है, उनको तू ना गिनना, बाकी सबको गिनना। अब यहाँ पे यूसुफ के 2 बेटे थे, मनसी और इफ्राहिम, इसलिए यूसुफ के बेटे मनसी का कबीला और फिर ऊपर इफ्राहिम के कबीले में से होसिया, जिसे यशुआ कहा जाता है, मूसा ने होसिया इफ्राहिम के कबीले में से जो बेटा होसिया था, नून के बेटा होसिया था, उसका नाम मूसा ने यशुआ रखा था। आगे हम देखेंगे। तो इस तरह ये 12 कबीले बनते हैं। तो लावी का कबीला जो है वो लीड कर रहा है। अब लावी का कबीला नहीं गया। अब 12 कबीलों में से ये कौन गए हैं? ये मुल्क केनान के बॉर्डर पर गए हैं, जहां पे यरू की दीवार थी। और फिर हम एस्तर का किस्सा सुनेंगे, एस्तर की किताब में जाएंगे और फिर ये रिपीट होगा किस्सा कि वहां पे 12 कबीलों के सरदार गए थे, तो उन्होंने क्या किया था। ये ध्यान में रखें जरूर। जो रखते हैं उनके लिए रिपीट हो रहा है, और जो नहीं जानते उनके लिए ये स्टडी है। अब क्या होता है कि देखना यह है कि तैयारी क्या कर रही है। खुदा तो जानता है कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है, लेकिन इंसान की जांच के लिए खुदा अक्ल और दनाई देता है, आंखें खोलता है कि तुम आंखें खोल के चलो और देखो कि तुमने चलना कैसे है। आंखें बंद करके चलोगे तो ठोकर खाओगे। अब ऐसे ही उन्हें भिजवा देता, उसकी जांच पड़ताल ना करवाता, तो शायद ये सब लोग ही जो है वो फना हो जाते। तो आगे हम देखते हैं कि वो लोग जो कि खुदावंद की हजूरी में नहीं थे। अब मैं ये क्यों कहूंगा, ये वो कहूंगा कि फिर से पैदाइश की किताब उसका 10वें बाब पर जरूर आए। पैदाइश की किताब उसके 10वें बाब पर जरूर आए, तो आपको पता चलेगा कि वो क्यों नहीं थे। तो पैदाइश की किताब उसके 9वें बाब पे जरूर आए। वो देखें कि नोआ ने किसको कर्ज किया था और किसे मुबारक कहा था। फिर आपको पता चल जाएगा कि खुदावंद की हजूरी में कौन है, क्योंकि खुदा ही ने नोआ से ये कहा था, ये वादा किया था कि ये इंसान को मशक्कत, इंसान की जो मेहनत मशक्कत है उससे आजादी देगा। इसलिए नोआ बड़ा एक कीमती और बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी था। और जब उसकी ताबेदारी केनान ना कर सका, जो हाम का बेटा था, केनान ना कर सका, तो ये सारे केनानी जो हैं वो खुदा से दूर हो गए। अब ये जितने भी खुदा से दूर हुए हैं, ये खुदा की हजूरी के बगैर भी, यानी आई मीन टू से खुदा को एक्सेप्ट करने के बगैर भी एक ऐसी ताकत है जिसके बलबूते पर वो चलते हैं और वो सरफराज होते हैं, जो कि आज भी हो रहा है। ये उस वक्त तक होता रहेगा जब तक कि हमारा खुदामंद यसू अल मसीह उन अमीरों से जुदा करेगा जो खुदा की नजर में अमीर हैं। राइट। तो आज हम देखते हैं, चलें कौन पढ़ेगा 17 से 25 तक, कौन पढ़ेगा?
कोई नहीं पढ़ता, मैं ही पढ़ देता हूँ। अच्छा जी मैं पढ़ता हूँ। जी बेटे पढ़ो, शाबाश। और मूसा ने उनको रवाना किया ताकि सॉरी बेटे, कनान का हाथ दरिया सॉरी अल्फ्रेड भाई, जरा 16 से पढ़ दें ताकि वो होशिया और यशुआ की तस्दीक हो जाए। 16 आयत से। ये उन लोगों के नाम है जिनको मूसा ने मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा था, और नून के बेटे होशिया का नाम मूसा ने यशुआ रखा। और मूसा ने उनको रवाना किया था कि मुल्क कनान का हाल दरियाफ्त करे, और उनसे कहा कि तुम इधर जुनूब की तरफ से जाकर पहाड़ों में से चले जाना और देखना कि वो मुल्क कैसा है और जो लोग वहां बसे हुए हैं वो कैसे हैं, जोरावर है या कमजोर, और थोड़े से है या बहुत से, और जिस मुल्क में वो आबाद है वो कैसा है, अच्छा है या बुरा, और जिस शहरों में वो रहते हैं वो कैसे हैं, आबाद वो खैमे में रहते हैं या कबीलों में, और वहाँ की जमीन कैसी है, जरखेज है या बंजर, और उस में दरख्त है या नहीं। तुम्हारी हिम्मत बांध तुम्हारी हिम्मत बांधी रहे और तुम उस मुल्क का कुछ फल लेते आना, और वो मौसम अंगूर की पहली फसल का था। कहाँ तक पढ़ना सर? चलें कोई और पढ़ दें, 21 से 25 तक। कौन पढ़ना चाहेगा? जी जी शुक्रिया। और 40 दिन के बाद और उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे। थैंक यू भाई, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हम इस कलाम से दूर हटकर अपनी को बातें कर सकें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कलाम की तस्दीक के लिए हर आदमी इस अल्फाजों को अपने मुंह में रखे। आमीन। थैंक यू भाई और बहनों। अब भेजा क्यों? ठीक है, क्यों भेजा? इसलिए आप देखें कि जिस मुल्क का बादशाह अच्छा होगा उस मुल्क की रियाया भी अच्छी होगी। जिस मुल्क का प्रेसिडेंट अच्छा होगा उस मुल्क की काबीना भी अच्छी होगी, और जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अच्छा होगा जाहिर बात है वहां के लोग भी खुशहाल होंगे। और ये डिपेंड करता है उन लोगों के हुक्मरानों का। और खुदावंद ने जब वो 12 लोग मूसा से चुनवाए और चुनवाने के बाद केनान का बादशाह जो था उसका हाल दरियाफ्त और मुल्क के केनान का हाल दरियाफ्त करने के लिए उन्हें मगरब की तरफ भेजा। ठीक है, मगरब की तरफ भेजा और खुद उन्हें कहा कि तुम जनूब में पहाड़ों में जा फंसो।
जा बसो और देखना कि मुल्क कैसा है और वो लोग कैसे हैं और कैसे बसते हैं। यानी उन लोग उस मुल्क को देखना हो तो उसकी बादशाह की पहचान, लोगों को देखना हो तो उसकी रियाया और उसकी काबीना की पहचान, और जोरावर को देखना हो तो फिर कमजोरों की पहचान, और फिर खैमा को देखना हो तो किलों की पहचान, उनके अपने जहां पे वो रहते हैं उनकी पहचान। जमीन की पहचान देखनी हो तो दरख्त की पहचान देखें कि दरख्त कैसे हैं और किस तरह फल लाते हैं, तो जमीन की पहचान आपको पता चल जाएगी कि ये जमीन कड़वी है या कच्चा फल देखनी है या पूरी तैयार नहीं हुई। अंगूर का अंगूर के दरख्त की पहचान देखनी हो तो फिर देखें कि वो दरख्त कैसा है। अंगूर की पहचान देखनी हो तो दरख्त देखें वो कैसा है। और इन पहचानों के लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो क्या हुआ। वो क्या हुआ जो 12वीं आयत में लिखा है, और वादी अस्काल में पहुंचे और वहां उन्होंने अंगूर की एक डाली काट ली और जिसमें से एक ही गुच्छा था और जिसके 2 आदमी एक लाठी पर लटकाए हुए लेकर गए, और वो कुछ अनार और अंजीर भी लाए उस गुच्छे के सबब से जिसे इसराइली ने वहां से काटा था। उस जगह का नाम वादी अस्काल पड़ गया। और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क की हालत दरियाफ्त करके लौटे। यानी वो खुदा के साथ राजी भी नहीं थे होते थे, लेकिन उनकी मेहनत मुशक्कत कैसी थी, उन्हें कोई ना कोई तो सपोर्ट कर रहा था। अब खुदावन तो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है तो उन्हें कौन सपोर्ट कर रहा था। इसलिए खुदा ने कहा है कि ढीले हाथ और सुस्त पांव मुझे पसंद नहीं है। गो खुदा का फजल मौजूद है, लेकिन एक दरिया में या समुद्र में गिरता हुआ आदमी खुदा से ये दुआ करे कि मुझसे मौजा कर मुझे निकाल दे, और उस मौजे के मुताबिक खुदावंद ये मौजा करेगा कि कोई हेलीकॉप्टर या कोई कश्ती या कोई जहाज उधर से गुजारेगा और उसे वो निकाल लेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आंख से उसे उठाया और जनाब बाहर फेंक दिया, ऐसा नहीं होता। या फिर हम रात को ख्वाब में देखें और सुबह हमारे घर में टेलीविजन पड़ा होगा, ऐसा नहीं होता। टेलीविजन में हासिल करने के लिए मेहनत बशर खुदावंद नौकरी देता है, तनख्वाहों में इजाफा करवाता है, बरकत देता है आपके पैसे में, और फिर आप चीजें खरीद के अपने घर में बनाते हो। तो इसी तरह उन लोगों ने मेहनत की है, जिसकी तस्दीक हम 14वें बाप में पढ़ेंगे जब हम उस मकाम पर आएंगे। राइट। तो उसकी पहचान के लिए जब खुदा की हजूरी में रहकर ये काम करोगे तो खुदावंद की पहचान होगी। और जब तुम शैतान की हजूरी में रह के, शैतान भी तुम्हें देगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं देता, वो भी अपने बंदों को खुशहाल करता है, लेकिन वो चंद दिनों की खुशहाली है, वो जॉय नहीं है। एक हैप्पीनेस है और एक जॉय है। हैप्पीनेस का वक्त है, जॉय का वक्त नहीं है। जॉय फॉरएवर है। कट इन ए शॉर्ट स्टोरी। तो इस तरह खुदावन चाहता था कि मेरी जो है वो बढ़ाई हो और मेरा जलाल जो है जिसने पूरी कायनात को बनाया है वहां पर कायम रहे। आगे चलते हैं 26 आयत से 33 आयत तक। कौन पढ़ देगा? चलिए पढ़िए, वरना मैं पढ़े देता हूं। जी भाई, 26 से 33 तक पढ़ दे, या 26 से 32 तक। 33 में पढ़ देता हूं। और उस मुल्क का फल उनको दिखाया और मूसा से कहने लगी कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था हम वहां गए और वहां वाकई दूध और शहद उसमें बहता है और ये वहां का फल है। लेकिन जो लोग वहां बसे हुए हैं वो जोर आवर हैं और
शहर बड़े बड़े और कसीदार हैं, और हमने बनी अनाक को भी वहां देखा, और उस मुल्क के जनूबी हिस्सा में तो हमाली की आबाद है, और हत्ती और यूसी और अबूरी पहाड़ों पर रहते हैं, और समंदर के साहिल पर और यरदन के किनारे किनारे कनानी बसे हुए हैं। तब कालेब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा कि चलो हम एक दम चाहकर उस पर कब्जा करें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि हम उस पर तसव्वुर कर लें। लेकिन जो जोरावर लेकिन और आदमी उसके साथ ये थे, वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोरावर हैं, और उन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क के जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी, और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा जाता है, और वहाँ जितने आदमी हमने वो सब है कदावर है, कदावर हैं, जी हाँ। जितने हमने देखे हैं वो सब कदावर हैं, और हमने वहाँ बनी अनाक को भी देखा जो जब्बार हैं और जब्बारों की नस्ल से हैं, और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबके घरानों को, जिन्होंने पढ़ा, जिन्होंने सुना, मुकम्मल तौर पर तसल्ली और आराम दे। अब देखना यह है कि ये जब्बार कौन है। जब्बार हमने कहाँ पे पढ़ा था? पैदाइश की किताब उसके 6 बाब में। कोई बयान करे? कौन बयान करेगा? ये देखना जरूरी होता है स्टडी जब कर रहे हो, तो वो जब्बार क्यों थे और कैसे थे, क्यों जब्बार बन गए वो। पैदाइश की किताब 6 बाब निकालिए जरा, कौन निकालेगा? उसकी 4थी आयत पढ़े। कौन पढ़ेगा? जिसने निकाल लिया वो पढ़े। आमीन, आमीन बेटे, थैंक यू वेरी मच बहन, सो काइंड ऑफ। तो क्या हमने देखा? देखा ये बातें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं याद रखने के लिए कि वहां जब्बार उन्होंने देखे थे, और वो जब्बार कौन थे कि खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मजामत ना करती रहेगी, क्योंकि वो फिर भी बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। उन दिनों में जमीन पर जब्बार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटे के पास गए तो उनके लिए औलाद पैदा। यही कदीम जमाने के सूरमा और जब्बार हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि खुदा के बेटे कौन कहलाते हैं। अगर नहीं तो 5वां बाब और उसकी 27वीं आयत में देखें, सॉरी 23वीं आयत में देखें। 5वां बाब पैदाइश की बात, 5वां बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता था और वो गायब हो गया कि वो खुदा ने उसे उठा लिया था। ये किसकी उसमें से है? ये सेत के खानदान में से है। और फिर दूसरा, बाकी सारे मारे गए तूफान में, और फिर कौन बचा? एक नोहा बचा जो 29वां आयत में, और उसने कहा कि उसका नाम नोहा रखना, और कहा कि ये हमारे हाथों की मेहनत और मशक्कत से जो जमीन के सबब से है, जिस पर खुदा ने लानत की है, हमें आराम देगा। खुदा ने हनूक को तो जिंदा उठा लिया, उसे तो मुसीबत में नहीं पड़ने दिया। और ये भी बताता चलूं कि खुदा हनूक को 40 साल के बाद मिला था। जिस तरह मूसा को 40 साल तालीम दिलवाई थी, 40 साल अपने मुल्क में आके उसको प्रैक्टिस करवाई थी, प्रैक्टिस करवा के 40 साल तक उन्होंने
वो सफर अदा किया था मुल्क कनान तक। तो ये बातें बड़ी कनेक्टेड हैं, इस तरह कनेक्टेड हैं कि जब सेत के लोगों ने किसके, केन की कबीलों से, और केन के कबीले कौन है, जो कि 4 बाब उसकी 23वीं आयत में कहता है, क्या कहते हैं, और लमक ने अपनी बीवियों से कहा कि ए आदा और ज़ा मेरी बात सुनो, ए लमक की बीवियों तुम मेरे सुखन पर कान लगाओ, मैंने एक मर्द को जो जिससे मुझे जख्मी किया था मार डाला, और एक नौजवान को जिससे मेरे चोट लगाई थी कत्ल कर दिया। अगर केन का बदला 7 गुना लिया जा सकता है तो लमक का 70 और 7 गुना, यानी ये लोग मारने वाले, कत्ल करने वाले, और फिर भी खुदावंद के 7 बार मारने के बाद भी खुदावंद से माफी मांगते हैं, और अब दावा करते हैं कि खुदा हमारे साथ है कि मुझे 70 दफा वो माफ करेगा अगर मैं गुनाह करूंगा। यहाँ पे जो लोग हैं वो खुदा के साथ चलने वाले, उस वक्त भी खुदा उन्हें अपने बेटे कहता है, और उन्हें बेटे नहीं कहता जो साथ नहीं चलते। इसीलिए खुदा ने वो तूफान भेजा और सारे के सारे खत्म हो गए। हनूक को तो जिंदा उठा लिया और 8 जानें फिर बचा ली, और उस 8 जानों में से आप देखें जो 9वें बाब में है, आपको पता चलेगा कि उन 3 खानदानों ने जो कबीले निकले उन्होंने क्या किया। यही वो 3 खानदान यहाँ पर आते हैं जो नाफरमानी के और फर्मादार यहाँ भेजे जाते हैं। जो देखना है आपने तो देखिएगा जरूर। मैं खत्म ही करूंगा, क्या टाइम हो गया, वो मैंने 3 मिनट ज्यादा ले लिए आपके। खैर नहीं हो, स्टडी का वक्त है, जितनी भी स्टडी की जाए खुदा उनके कलाम की कम है। 29 में लिखा, और उस मुल्क के जनूबी हिस्सा में तो अमालिकी आबाद है, और हत्ती और यबूसी और अमूरी पहाड़ों पर रहते हैं। और अब ये हत्ती और अमूरी, और देखें 10वें बाब में क्या कहती हैं, फिर हम खत्म करेंगे। 10वें बाब में खुदाश की किताब उसका 10वां बाब आ जाए, कौन पढ़ेगा, इसने निकाला है। 13वीं आयत पढ़ दीजिए, पहली 6ठी आयत पढ़े और फिर 13वीं आयत। और मिस्र से लूदी, गरामी, मलहाबी और नफ्तूही और कसलुही, और हाँ कसलुही, ठीक है। कस्तूरी और कसूही जिनसे फिलिस्तीन निकले और कस्तूरी पैदा हो। ठीक है। 6ठी आयत में कहता है, और बनी हाम ये हैं कोश, मिस्र, फूत और केनान। और फिर नीचे आ जाए, ये 20वीं आयत में लिखा है, सदूम और अमूरा और अदूम और जिबियान की राह पर है। सो बनी हाम ये हैं जो अपने अपने मुल्क और ग्रोह में अपने कबीलों और अपनी जुबानों के मुताबिक आबाद हैं। ठीक है। और यहाँ 21वां देखे, सेम कौन है, समेरिटन, और उसका बेटा अबर। और फिर यहाँ नीचे आ जाए, एक और अबर नजर आएगा आपको, हाँ 25वीं आयत में, 24वीं आयत में, और एक्सद से साहला पैदा हुआ और साले से अबर पैदा हुआ, यानी पोता पोता पोता, वो भी अबर है। तो इस तरह इब्रानियों और इनके दरमियान में जो बातें आती हैं, इब्रानियों कौन हुए, जो मूसा के साथ साथ इब्रानियों में से निकले हैं, और फिर यहूदा आए हैं, यहूदी बने हैं, फिर इसराइली बने हैं, फिर यहूदी बने हैं। और यहूदियों में ये 7 इसराइली, इब्रानी और यहूदी, ये 7 खुदा की नजर में चलते हैं। और जो मुखालिफ हैं वो कौन है, फिर आ जाए गिनती की किताब और उसके 29वें बाब में, अमालिकी आबाद है, हत्ती आबाद है, यबूसी आबाद है, अमूरी आबाद है, पहाड़ों पर रहते थे, और समुद्र के साहिल पर यरदन के किनारे किनारे किनानी भी बसे हुए थे। तो इस तरह जब किनानियों के वहां से वो लाते हैं, फल लाते हैं, तो ये उनकी मेहनत और मशक्कत का नतीजा था, जिसकी वजह से जमीन ने उन्हें अनाज दिया। अब खुदा ने, हम 14वें बाब में पढ़ेंगे, खुदा ने यही कहा कि तुम ऐसे मेहनती बनो, लेकिन उन जैसे काम नहीं करना। क्योंकि आगे हमने 33वीं आयत में नहीं पढ़ा, क्योंकि टाइम बहुत, मैंने 5 मिनट आपके ज्यादा ले लिए हैं, आई एम सो सॉरी। उसमें लिखा है कि वो
ایک دوسرے سے لڑتے اور انسان کی نسل کو ختم کرتے تھے. اس لیے خدا ان سے محنتی تو تھے لیکن انسان کی انسانیت کو جو خدا نے بنائے اسے قبول نہیں کرتے. تو بھائیو آج بھی ہمارے درمیان میں یہی حال ہے. خداوند نے اپنے 12 قبیلے تو نہیں چنے بلکہ اپنے 12 شاگرد ضرور چنے. جو اسرائیل کے قبیلے بنے ہیں وہ خداوند کی طرف سے بنے ہیں, خدا کی طرف سے بنے ہیں, اور جو 12 شاگرد بنے ہیں وہ بھی خدا کی طرف سے بنے ہیں. یہاں پہ تو ان کو کہا جا کر دیکھو اور ان کو فتح کرو, اس علاقوں کو فتح کرو, اور علاقوں کو فتح کرنے کے لیے لامحالہ ان کے انسانوں کو مارنا چاہیے تاکہ ان علاقوں کو فتح. لیکن خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں وہ علاقوں کو فتح نہیں کرتے بلکہ خیموں کو, ان مسیحوں کو فتح کرتے ہیں اور اس کی بادشاہت میں داخل کرتے ہیں. یہاں 12 قبیلے کنعان میں داخل ہوتے ہیں فتح کر کے. یسوع المسیح کے جو 12 شاگرد ہیں یعنی 12 قبیلے کہہ لیں, 12 شاگرد جو ہیں وہ فتح کرتے ہیں ان روحوں کو, جگہوں کو نہیں فتح کرتے بلکہ روحوں کو فتح کرتے ہیں. خداوند ہمارے ساتھ ہو اور خداوند اسی کلام کے وسیلے سے ہمیں تمام کو برکت دے اور ہمیں سلامتی اور اپنے فضل کی کثرت سے بارش کرے. آمین. آمین آمین آمین. ڈاکٹر صاحب خدا آپ کو بڑی برکت دے ان گہرے ویدوں کے لیے جو خدا نے آپ کو اور آپ نے ہمیں سکھائے ہیں, اور ان کا ایمان رکھنے کے ہم سب نے آج کے بائبل اسٹڈی سے بہت کچھ سیکھا ہے, اور ہم دعا گو ہیں سب کے لیے اور آپ کے لیے بھی خدا آپ کو اور زیادہ گہرے طور پر دنیا میں خود استعمال کریں ان کی خوشخبری کے لیے, اپنے گھرانے کو برکت دیں. آج کی بائبل اسٹڈی کی شکر گزاری کے لیے جو ہم نے آج سیکھی, میں سسٹر کبیتا سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں, اور اس کے بعد پاسٹر لطیف جان صاحب تمام مناجات کو خدا کی خدمت میں رکھیں گے. دعا کریں. عظیم باپ تیرا شکر, تیری تعریف, تیری تقدیس کرتے ہیں. تو کل آج اور اب تک رکھتا ہے. تیرا شکر کرتے ہیں تیرے سب وعدوں کے لیے جو سچے اور ہاں کے ساتھ ہے خداوند. تیرا شکر کرتے ہیں تو ایک شفیق باپ اور وفادار باپ ہے خداوند. تیرا شکر کرتے ہیں تو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے, ہماری فکر کرتا ہے. تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت خداوند اس بات کے لیے کہ خداوند ہم سب کو تو نے یہ موقع مہیا کیا کہ خداوند ہم ایک ساتھ روح کے مختلف جگہوں پہ ہیں, ایک دوسرے سے دور ہے, لیکن خداوند روح کی عبادت میں ایک ہے, اور ایک جگہ خداوند جمع ہو کرتے ہیں, نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں اور تیرے کلام کو سیکھا. تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بندہ کے لیے خداوند, کثرت سے اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال کر, اور ان بھیدوں کو خداوند جو تیرے بیٹے کے وسیلے سے ہم نے سنے خداوند, ہم اس کلام کو سیکھتے چلے جائیں اور خداوند اس کو سمجھتے چلے جائیں, کیونکہ وقت بہت قریب ہے اور تو جلد آنے والا ہے خداوند. اور بخش دے کہ اس کلام کو جو آج ہم نے سیکھا ہے خداوند اس کے مطابق عمل کرے, اور خداوند دوسروں تک بھی جو ابھی تک خداوند اس کو نہیں جانتے خداوند دوسری روحوں تک بھی اس کو لے کر جائیں, تاکہ خداوند تیرا کلام اس دنیا کے کونے کونے تک پھیلے اور تیرا آنا جو ہے وہ جلد ہو اور مبارک ہو خداوند. کیونکہ ایک وقت آئے گا جب یہ کلام ہم سے لے لیا جائے گا. آج ہی یہ وقت ہے, آج ہی موقع ہے کہ ہم اس کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں, سنیں, سیکھیں اور اس پر عمل کریں. حاضر جماعت کو بڑی برکت دے اور اپنے نام اور جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر. یہ سب کچھ مانگتے